سے ناز، غزالہ کا حسن رم، موتی کی آب، گل کی مہک، ماہ نو کا خم، ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو، اور کتنے حسین افق سے ہویدا ہوئی ہے تو۔ لہجہ ملی ہے کہ نمک خوار ہوں تیرا، اور صحت زبان میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا۔ ایک صدی ختم ہوئی تو ایک صدی شروع ہوئی، زمانہ بدلا تو زمانے کا مزاج بھی بدلا، پوری دنیا ایک عالمی قصبے کی شکل میں ڈھلنے لگی، نئے نئے بازار سجنے لگے۔ بازار نے زندگی کی رفتار بھی بدلی اور ذوق و شوق کا معیار بھی، اسی کے ساتھ بدل گیا انداز گفتار بھی۔ فضا میں آزادی ہو اور ذرائع موجود تو کون پرواز کو روک سکتا ہے؟ ایک ہی سیکولر ڈیموکریٹک انڈین لینگویج ہے اور وہ ہے اردو۔ اردو میں کچھ ایسا امرت ہے، کچھ ایسا آب حیات ہے، اس کا جینیس ایسا ہے کہ کوئی سیاست اس کی حق تلفی کر کے، اس کے ساتھ بے انصافی کر کے بھی اس کو ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ عوام کے دلوں کو جوڑنے والی زبان ہے۔ اردو صرف ہندوستان کی زبان ہے، مجھے خوشی ہے کہ بہت سے ملکوں میں بولی جاتی ہے، لیکن یہ زبان ہندوستان کی ہے۔ مشکل حالات کے باوجود بھی اردو زبان کا زندہ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اردو زبان میں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کا دم اور خم باقی ہے۔ تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ خوش آمدید۔ آئیے اردو کی اس طویل داستان کا آخری ورق پلٹتے ہیں اور لے چلتے ہیں آپ کو آج کے گلوبل ولیج میں، کیونکہ اب تو سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ ہاں، اردو پڑھنے والوں کی تعداد کا اگر ہندوستان کی کل آبادی کے پرسنٹیج سے موازنہ کیا جائے تو کمی نظر آئے گی، لیکن آج جو بھی تعداد ہے وہ پچھلے وقتوں میں اردو جاننے والوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے، اور اپنے کردار کے مطابق موجودہ دور میں بھی اردو نئے آسمانوں پر پرواز کر رہی ہے۔ جب تک دلوں میں محبت ہے اور اس کے اظہار کی تمنا ہے، تب تک اردو بھی قائم ہے۔ اس ملینیم میں بھی اردو از راکنگ۔ زمانے نے کروٹ بدلی تو بھلا اردو کیسے ساکت رہ سکتی ہے؟ گو کہ وہ تہذیب رخصت ہوئی جس میں اس زبان کی پرورش اور آرائش ہوئی تھی، مگر اردو کا سحر ختم نہ ہوا۔ ذوق و شوق میں تبدیلی اور تیز رفتار زندگی کے ساتھ چلتے چلتے صدیوں پرانے باغ میں نئے پھول آنے لگے، اور ایک قدیم زبان میں اظہار کے جدید طریقے آزمائے جانے لگے۔ ذہن و دل کا کھلا پن اردو کے دامن کو کشادہ رکھتا ہے، اور یہی وہ خوبی ہے جس کے سبب یہ خواص کی محبوب ہے اور عوام کے درمیان مقبول۔ اگر الگ الگ زبانوں کا ایک ہو جانا اردو کی پیدائش کی حقیقت ہے تو یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ روز مرہ استعمال کے کتنے ہی لفظ اس میں دوسری زبانوں سے آ رہے ہیں۔ دیگر زبانوں سے اسی خلوص کی وجہ سے اردو کے ذخیرے میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا ہے۔ تو گلشن کی خوشبو تیرا، ایک تن من میں ہے
कोई जज्बा हो, कोई फिक्र हो, इस जबान में राह पा जाता है और कुछ इस तरह कि हमें ये एहसास भी नहीं होता कि हम जो बोल रहे हैं वो उर्दू ही है। अगर उर्दू ज़बान की तरक्की होनी है तो हमें नई ज़बानों से या दुनिया की ज़िंदा ज़बानों से ज़्यादा सीखना होगा। उसके साथ ही साथ आवाम से सीखना होगा कि वो किस ज़बान में बात कर रहे हैं। आज उर्दू सीखने के नए नए ज़राए मुहैया हैं। ऑनलाइन उर्दू तालीम का आगाज़ हो चुका है और उर्दू में छपने वाले अखबारात और रिसालों की तादाद पहले से कहीं ज़्यादा है। ये देखिए कि जो हमारे यहाँ कंप्यूटर से कोर्सेज आ रहे हैं उसके अंदर घर बैठे उर्दू सीखी जा सकती है, ये तमाम चीज़ें आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उर्दू से जुड़ने वाले भी पैदा होते रहेंगे, उर्दू सीखने वाले भी पैदा होते रहेंगे, इल्मी अदबी तहकीक की सतह पर भी काम चलता रहेगा और लोगों की दिलचस्पियाँ इसी तरीके से उर्दू को ज़िंदा रखने में बढ़ती रहेंगी। आज उर्दू रस्मुल ख़त इन पेज के अलावा उर्दू यूनिकोड सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर में बआसानी तहरीर किया जा सकता है। नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के उर्दू यूनिकोड को अभी 2-3-4 महीने पहले लॉन्च किया गया। और सिर्फ यही नहीं कि कंप्यूटर पर आप काम करेंगे, बल्कि खुशी की बात यह है कि स्मार्टफोन के लिए एंड्रॉयड के टेक्नोलॉजी के लिए भी उर्दू फॉन्ट और उर्दू कीबोर्ड पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। नतीजतन उर्दू में ई बुक्स का खजाना मुसलसल बढ़ रहा है और डिजिटल अखबार मकबूल हो रहे हैं। होश संभले तो कंप्यूटर पे जा बैठे बच्चे, अब नहीं दिखता मोहल्ले में खिलौने वाला। जब तक हम इस तरह की अलामतें और तशबीहात और अल्फाज को नहीं लाएंगे तो फिर शायरी ये जो आज की जो समझिए कि माहौल है उससे जुदा हो जाएगी। 21वीं सदी में उर्दू अदब पूरे मुल्क में तख्लीक हो रहा है और एक नए ज़हन की नुमाइंदगी कर रहा है जिसमें न सिन्फ की बंदिशें हैं, न तहरीकों की, और न ही स्टाइल्स की सरहदें मुतय्यन हैं। आज का जो अदब लिखा जा रहा है वो आज के समाज के का जो दर्द है, उसका जो कर्ब है, वो जो दुनिया है, उसको बयान करने की कोशिश की जा रही है। मुकाबला आराई के इस अहद में अगर मास मीडिया उर्दू को फ़रोग़ दे रहा है तो अपनी मकबूलियत और कामयाबी के लिए उर्दू पर मुनहसर है। इस वक्त तो उर्दू का मंजरनामा बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज जो सीरियल्स बन रही हैं, जो फिल्में लिखी जा रही हैं, उनकी पूरी ज़बान का अगर आप एक एनालिसिस करें, तजिया करें, तो आपको मालूम होगा कि 75% जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो उर्दू के हैं। जिस तरह से ऑडियंसेस की सूझबूझ, ऑडियंस की सलाहियत, उनकी अपनी पसंद, उनकी अपनी तालीम का मयार बदलता गया, उसी तरह उर्दू का भी मयार जो है बदलता चला गया, या ज़बान का इस्तेमाल और ज़बान की अहमियत बदलती चली गई। इस दौर में राब्ते के ज़ाब्ते भी जदीद हुए हैं। मुलाकातें और बातें अब एक दूसरे से रूबरू हुए बगैर भी मुमकिन हैं। जदीद टेक्नोलॉजी ने एक नई तरह की बज़्म सजा रखी है। उर्दू के लिए कंप्यूटर पर सर्च का बटन दबाएं और महज आधे सेकंड में आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर लाखों नतीजे नमूदार हो जाएंगे। अब चाहे शायरी का मजा लीजिए, चाहे ब्लॉग पढ़िए या फिर रिसाले, कंप्यूटर, इंटरनेट, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, एसएमएस, सैटेलाइट चैनल से आरास्ता आज की इन महफिलों में उर्दू सब्ज़ो शादाब नजर आती है। कहा जाता है किसी ज़बान के ज़िंदा रहने की अलामत ये नहीं है कि आप पढ़ते हैं या नहीं, आप लिखते हैं या नहीं। ज़बान के ज़िंदा रहने की बड़ी अलामत ये है कि वो ज़बान बोली और समझी जाती है या नहीं। आप हिंदुस्तान के कोने कोने में घूम जाएं, उर्दू बोली भी जाती है, उर्दू समझी भी जाती है। दौरे हाजिर में रस्मुल ख़त से नावाक़फ़ियत भी उर्दू की मकबूलियत में हायल नहीं हो पाती। उर्दू खबर हो या अदब, देवनागरी और रोमन में भी आसानी से दस्तयाब है। देवनागरी की वजह से उर्दू ज़्यादा लोकप्रिय हो गई, क्योंकि पहले वो महदूद रहती थी उन लोगों तक जो कि वो शिकस्ता जानते थे उर्दू की जो लेखनी है,
لیکن اب تو دیوناگری کے ذریعے جو چھپ رہا ہے اردو کا کلام، وہ ایک بہت اچھی بات میں سمجھتا ہوں۔ دور نو، رابطے کے بدلتے ہوئے انداز، نئے نئے ویب سائٹس، بلاگز، میگزینز، نیوز پیپرز، SMS، ٹیلی ویژن چینلز اور فلمیں، یا یوں کہیے کہ اردو کے نئے گہوارے جو کسی بھی سرحد کو تسلیم نہیں کرتے۔ آج اردو دنیا کی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں سے ایک ہے۔ اس گلوبل دور میں رسم الخط اور ملکی حدود سے آزاد دنیا کے بیشتر ممالک میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ بالی ووڈ میں اب صرف ہندوستان کے لیے فلمیں نہیں بنتی، بلکہ ان فلموں کا زیادہ تر بزنس بیرونی ممالک میں ہوتا ہے۔ اردو کا استعمال ان فلموں کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ وجہ، اردو کے عاشق سارے جہاں میں موجود ہیں اور دنیا بھر میں اردو کی نئی نئی بستیاں آباد ہو رہی ہیں، کچھ ڈائسپورا کے سبب اور کچھ اردو کی کشش کے سبب۔ کابل، افغانستان۔ ہندوستانی فلموں کی بدولت اردو کابل کے بازاروں میں خوب استعمال ہوتی ہے۔ فلمیں، رسالے، انٹرنیٹ یا عام بول چال، اردو اپنے بین الریاستی مزاج کے سبب ساری دنیا میں چھائی ہوئی ہے اور ایک ہر دل عزیز رابطے کا نام ہے۔ اردو کے جغرافیائی فروغ کی بات جب ہم کرتے ہیں تو اردو ہندوستان میں بولی جاتی ہے، اسی طرح سے پاکستان کا پورا علاقہ ہے جہاں اردو بولی جاتی ہے، پھر مڈل ایسٹ ہے، وہاں اردو کی تعلیم کا بھی انتظام ہے۔ اس کے علاوہ آپ یورپ کی طرف چلے جائیے تو جرمنی، فرانس، انگلینڈ اور یورپ کے مختلف ممالک میں اردو بولنے والے لوگ بسے ہیں، اور وہاں وہ شاعری کر رہے ہیں، افسانے لکھ رہے ہیں، چھاپ رہے ہیں، اور وہاں سے وہ بہت سی ویب سائٹس چلا رہے ہیں۔ اس سے بھی آگے پھر آپ امریکہ کی طرف چلے جائیے، امریکہ میں اور کینیڈا میں، وہاں بھی اردو کے بولنے والے بہت سارے لوگ ہیں اور لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں۔ انکارٹا اور ایتھنولاگ کے مطابق دنیا میں 6000 زبانیں ہیں اور اردو ان 20 زبانوں میں شامل ہے جو عالمی سطح پر سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ اردو بولنے والوں کی تعداد جو ہے 400 ملین ہے۔ یونیسکو کے لحاظ سے اردو جو ہے ورلڈ کی 7th لینگویج ہے۔ یونائٹڈ نیشن میں ہمارا نمبر 24 ہے۔ جادوئی کیفیت پیدا کرنے والی یہ زبان عالم ادب کو ہندوستان کا بیش قیمت تحفہ ہے۔ جس طرح ہندوستان میں فرانسیسی یا جرمنی زبان پڑھائی جاتی ہے، اسی طرح اردو روس میں پڑھائی جاتی ہے۔ ماسکو میں 3 یونیورسٹیاں ہیں جہاں اردو پڑھائی جاتی ہیں۔ طلباء کی تعداد زیادہ بڑی نہیں ہے، لیکن وہی کہتے ہیں کہ مقدار کے بات نہیں ہے، معیار کے بات۔ برطانیہ میں اردو دوسری سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔ تاریخ کے اعتبار سے اردو سارے ہندوستانیوں کی زبان ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں۔ میرے وطن میں بھی اردو بولنے والے کافی تعداد میں ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ انگلینڈ میں اردو انگریزی کے بعد سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔ تیرے حصے میں ہر قطرہ ہے دریا، میرے حصے میں پیاس آئی بہت ہے۔ امریکہ اور کینیڈا میں اردو کی محفلیں بھی سجتی ہیں اور اردو میں تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ اردو اپنی طرف کھینچتی رہتی ہے مجھے، اور اردو کا مطلب ہے شاعری اور تہذیب اور عزت والی زبان۔ تیرے بدن کی خوشبو بولے۔ اس زبان سے قدیم وابستگی کے سبب خلیجی ممالک میں اردو شاعری کا چلن زور و شور سے ہے۔ عربی کا جانثار ہوں، اردو سے عشق ہے۔ ایمریٹس میں یا دبئی میں وہی اردو کا رواج رہا ہے۔ قاہرہ میں 5 یونیورسٹی میں اردو پڑھائی جاتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اردو کسی نواب کی جاگیر تو نہیں، اہل جنوں کے پاؤں کی زنجیر تو نہیں، ایک ربط کی زبان ہے تکثیر تو نہیں، اردو سے عشق کرنے پہ تعزیر تو نہیں۔ ایک دریا ہوں مگر پیاسا رہا ہوں عمر بھر،
सोचता हूँ अब समंदर में उतर जाता हूँ मैं। अगर चीन के शायर आपको हैरत में डाल देते हैं तो जापान में भी उर्दू के शोबे मौजूद हैं। आजकल मैं उर्दू ज़बान और जनूबी एशिया का सकाफत दाइतो बुंका यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। गरज नए जमाने में नई जमीनें तलाश कर चुकी है ये जिंदा जबान। बर्रे सगीर की सरहदों से निकलकर नए ममालिक और नई बस्तियों में उर्दू ज़बान व अदब के चिराग रोशन हो रहे हैं। आजकल मैं उर्दू पढ़ रही हूँ क्योंकि उर्दू बहुत मुख्तलिफ ज़बानों से आती हैं और मुझे ज़बानों में दिलचस्प है। मैं साउथ एशिया में काम करूँगी तो इसलिए ज़बान बहुत अहम है। आज 144 यूनिवर्सिटियों में हिंदुस्तान पाकिस्तान से बाहर उर्दू पढ़ाई जा रही है। 34 मुल्कों में बाहर हिंदुस्तान से उर्दू पढ़ाई जा रही है। 70 मुल्कों में उर्दू के सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और मुशायरे होते हैं। 80 मुल्कों में उर्दू लिटरेचर का तर्जुमा हो चुका है। उर्दू का मामला अब बियॉन्ड कंट्रोल है, वो एक इंटरनेशनल एंटिटी बन चुकी है। अहदे हाजिर के तकाज़ों को इस मुतहर्रिक ज़बान ने नज़रअंदाज नहीं किया, बल्कि ख़ुद को मज़ीद लचकदार और सहल बनाया है। क़वायद की पाबंदियाँ हस्बे ज़रूरत ढीली की गईं और तलफ़्फ़ुज़, इमला और जिन्स के मसलों को आसान बनाया गया। नतीजतन आज ये महज किताबों की ज़ीनत नहीं, बल्कि खेत खलिहान और हाट बाज़ार से होती हुई देश दुनिया में ज़िंदगी के हर पहलू की अक्कासी कर रही है। उर्दू महज ज़बान नहीं, एक मुकम्मल तहज़ीब है जो 5000 साला विरासत को खुद में समेटे हुए नए उफ़ुक़ तलाश कर रही है। इसे क़दीम से वाबस्तगी है और जदीद से मुहब्बत भी। आज की तेज़ गाम ज़िंदगी में ज़रूरत है तो बस इसे ज़रिया माश से वापस जोड़ने की। उर्दू की कहानी हिंदुस्तान, हिंदुस्तानियत का किस्सा बयान करती है। उर्दू हर मरहले पर ज़माने की तर्जुमान रही है। इजहार की नफासत हो, ख्याल की नज़ाकत हो, हुस्न अदायगी हो या फिर बगावत के तेवर, उर्दू को अवाम और खवास दोनों में यकसा मकबूलियत हासिल है। हमारे घर आंगन से बाजार तक, बाजार से अखबार तक, अखबार से दरबार तक उर्दू हर तबके, हर माहौल की रौनक है। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो। आज पार्लियामेंट का हर मेंबर अपनी अपनी तकरीर में उर्दू का कोई ना कोई शेर पढ़ता है। ये उर्दू की मकबूलियत है और उर्दू की ये मकबूलियत दुनिया में ये मिसाल पैदा की है कि दुनिया की सबसे मकबूल तरीन ज़बान उर्दू ज़बान है। तेरी बातों में ये खुशबू न होती अगर तेरी ज़बान उर्दू न होती। तो बातों में खुशबू लाने के लिए सियासतदान हो, चाहे फ़िल्म हो, चाहे समाज में आम लोग हों, अगर अपनी बात में वज़न रखना चाहते हैं तो वो उर्दू के बगैर उनका काम बनता नहीं है। नस्ल नौ की उर्दू की तई मोहब्बत इस बात की दलील है कि ये ज़बान इर्तिका की नई मंजिलें तय कर रही है। आज की तेज़गाम ज़िंदगी में ज़रूरत है तो बस इसे ज़रिए मौश से वापस जोड़ने की। मैं शोभा उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर रही हूँ। जी मैं उर्दू पढ़ाना चाहती हूँ, मैं उर्दू की टीचर बनना चाहती हूँ। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात, मैं बच्चों को उर्दू सिखा पाता हूँ, सिखा लिया मैंने कुछ। उर्दू ज़ुबान बहुत ही शीरी ज़ुबान है। इस ज़ुबान को सीखने के लिए सिर्फ मुस्लिम लोग नहीं आ रहे हैं, बल्कि गैर मुस्लिम भी आ रहे हैं, बल्कि सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं, बैरून मुल्क से भी आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, कनाडा से आ रहे हैं, अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं। उर्दू पढ़ने से हमारी ज़िंदगी के तरीके बदल गए। आपने अक्सर सुना होगा कि उर्दू ख़त्म हो रही है, ख़त्म हो गई है, लेकिन ये तो ज़माने के हम कदम रहते हुए नित नए रूप इख्तियार कर रही है, वसी हो रही है।
माना कि अमन व मोहब्बत की राह पर चलना आसान नहीं है, लेकिन यारब यही है रह गुजरे यारे खुशखराम, गुजरे हैं लाख बार इसी कहकशां से हम। तो आखिर ऐसा क्या है उर्दू में जो इसके रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है? जब से उर्दू शुरू हुई उसका तो दौर सुनहरा ही चल रहा है। बहुत से लोग जिनकी पैदाइशी और मादरी ज़बान उर्दू नहीं है वो उर्दू सीख रहे हैं। ये ज़बान आज भी हिंदुस्तान में ज़ोर शोर से ज़िंदा है और आज भी पूरे हिंदुस्तान में उर्दू लिखने वालों की तादाद भी कम नहीं, बोलने वालों की तादाद भी कम नहीं। दुनिया की तारीख़ को आप देखिए, जो ज़बान आवाम से जुड़ी हुई रहती है, जिस ज़बान का अदब अवामी अदब है, वो ज़बान कभी नहीं मर सकती। हिंदुस्तान में आज सरकारी दर्जा न होने के बावजूद भी उर्दू की इतनी मकबूलियत है जो उसकी ज़िंदा दिली, उसकी चाहत, उसकी मिठास का नतीजा है। उर्दू अदब के पढ़ने से मजहबी रवादारी का मज़ा और उसकी अहमियत मालूम होती है। जब मैं उर्दू के फ़रोग़ की बात करता हूँ, मैं हिंदुस्तानियत के फ़रोग़ की बात करता हूँ, मैं उस कल्चर के, उस मुश्तरका और साझा संस्कृति के तसलसल की बात करता हूँ जो सदियों में बना है और जो हिंदुस्तान की पहचान पूरी दुनिया में अब बन चुका। हमारी हिंदू मुस्लिम इंटीग्रेशन, हमारी सेकुलरिज्म, हमारी डेमोक्रेसी, अगर इन चीज़ों का दारोमदार किसी एक चीज़ पर है तो वो उर्दू। अगर आप हिंदू मुस्लिम में एकता चाहते हैं, सेकुलर डेमोक्रेसी आप चाहते हैं, तो उर्दू को कायम रखना पड़ेगा। उर्दू इज डेफिनेटली यकीनन इजहार के लिए उर्दू एक बेहतर जबान है, पर इसे किस तरह मकबूल बनाया जाए, इसमें कॉरपोरेट्स का अहम रोल है। आज़ादी के पहले फनून, तहजीब, जबान, थिएटर सब की सरपरस्ती महाराजाओं ने की। अब महाराजा तो रहे नहीं, इसलिए उर्दू तहजीब की सरपरस्ती स्टेट या कॉरपोरेट या फिर दोनों को करनी चाहिए। और बहुत शुड डू इट। उर्दू के साथ उम्मीद रखना हिंदुस्तान के साथ उम्मीद रखने के बराबर है। जश्न चला जाएगा, रूह चलती रहेगी। इसी तरह से हम लोग नहीं रहेंगे, उर्दू रहेगी। उर्दू बाकी रहेगी, उर्दू फना होने वाली नहीं है। इसकी बका के लिए लोग सबकॉन्शियसली करते रहते हैं काम, भले ही सोच समझ के ना करें। ये बहुत हसीन ज़ुबान है, मर नहीं सकती। नई उड़ान का रास्ता दिखा रही है हमें वो गर्द पिछले सफ़र की जो बालों पर में रही। जिस ज़बान के परिस्तारों की तादाद सितारों की तादाद से कुछ ही कम हो, उसका माजी ताबनाक, हाल रोशन और मुस्तकबिल हौसला परवर होता है। ज़रूरत है नस्ल नौ को उर्दू से यानी अपनी तहजीब से आशना करने की। स्कूलों में उर्दू लाजमी तौर पे बाकायदा पढ़ाई जाए, इसी दुआ और यकीन के साथ हम आपसे आज इजाज़त लेते हैं और आपको अलविदा कहते हैं। हमारा सफ़र तो आज मुकम्मल हुआ, उर्दू का सफ़र जारी है। महो साल की गर्दिश, मौसमों के उतार चढ़ाव और ज़िंदगी के तमाम रंगो आहंग जब तक जारी हैं, दास्तान उर्दू भी जारी है। दोस्तों, जब तक दुनिया में इश्क बाकी है, इश्क की ख्वाहिश बाकी है, मैं बाकी है, माहताब बाकी है और सद हिसाब बाकी हैं, तब तक उर्दू भी बाकी है। सुनाने वाले बदलते रहते हैं, इख्तिताम अपनी दास्तां में नहीं। खुदा हाफिज। उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम